So good morning, and uh, yesterday we studied. Yesterday we started a topic non-conventional or non-traditional machining, and we covered till now about the what is the non-conventional machining process, what are the limitation of conventional machining, what is the need for conventional or non-traditional machining process, then what are the requirements of a product to be machined by non-conventional machining process. So next one is the classification. Now how we can classify this non-traditional machining process? As I told you, this non-traditional process, they are working on some properties of the workpiece. It may be mechanical, thermal, electrochemical, chemical, or some laser, even sound property. So, so accordingly, we can classify these non-traditional or non-conventional machining process. So these can be classified according to source of energy used to generate such a machining action. Example: mechanical, thermal, chemical, and electrochemical. Mechanical one, erosion of work material by a high velocity stream of abrasive fluid or both. So in case of mechanical system, the material is removed with the process of erosion. Can anyone of mechanical system? Can anyone give me example of mechanical system? Yes, anyone? Ajaj, Ankit, Mukesh. Any example of mechanical one? Yes, any example? Like water jet machining. आई होप कल यस्टरडे कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, तो वन ऑफ देम इज़ द वाटर जेट. सो वाटर जेट मशीनिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम where the material is removed from the workpiece surface by the mechanism of erosion. Next one is the thermal. The thermal energy is applied to a very small portion of the work surface, causing that portion to be removed by fusion or vaporization of the material. The thermal energy is generated by conversion of electrical energy. Example is electrical discharge machining. Electrical discharge machining, or this is in this the thermal energy is used for the machining one. Then next one is the electrochemical, where mechanism is just the reverse of electroplating, where electrochemical mechanism is used, where some chemical reaction take place and material is removed from the surface of the workpiece. Then chemical, most material are susceptible to chemical attack by certain acids or other agents. In chemical machining, chemicals selectively remove material from portion of the work part, while other portion of the surface are protected by a mask. For example, आपको मालूम है, अगर हम मटेरियल को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो क्या होगा? अगर हम किसी भी लाइक आयरन बार है, उसको बाहर एटमॉस्फेयर रख दें तो क्या होगा? यस, वो क्या होगा, उसके सरफेस पे कोरोजन की लेयर आ जाएगी. एंड व्हाट इज दैट लेयर की जो जो ये आयरन रॉड है, दैट कंबाइन विद द लाइक दैट केमिकली रिएक्शन होगा एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, और जो उसका सरफेस है वो क्या जाएगा, वो इजीली उसको इरोड कर सकते हैं, बिकॉज जो वो जो कोरोजन की जो लेयर बनती है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं उसके सरफेस से. तो सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द chemical action. So next one is, so this is the classification. So mechanical, thermoelectric, electrochemical and chemical. So in mechanical, basically there are two kind of operation: machining and finishing. In machining, abrasive jet machining, ultrasonic machining, water jet machining, abrasive water jet machining, they are the example of machining by mechanical, using mechanical energy sources.
और फिनिशिंग ऑपरेशन दे आर अब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग, मैग्नेटिक अब्रेसिव फिनिशिंग और मैग्नेटो rheological finishing. So these all are covers under the category of mechanical source of energy. Second one is the thermoelectric. So in thermoelectric, plasma arc machining, laser beam machining, electron beam machining, electric discharge machining, and ion beam machining. These are machining which comes under the category of thermoelectric energy sources. And next one is the electrochemical and chemical. Electrochemical machining, ECM, chemical machining, biochemical machining. These kind of machining process come under the category of electrochemical. So in this particular first unit, we just go for the classification, and afterwards we will study all these machining process in details. So, in the exam, there may be a question of 10 marks, classification of non-traditional or advanced machining or non-conventional machining process. So you can just draw this diagram and explain, like which I have explained in the last slide. So that is more than sufficient. Okay. Then again, classic. Okay. Then based on properties, again same electrical, thermal, and this magnetic, non-magnetic materials and magnetic materials. So that is just which I told you earlier. And this is again the same, electrically conducing or electrically non-conducting. So I hope this you can easily cover for 10 marks, and I will share the slides with you, right? So, mechanical machining. Mechanical machining, ultrasonic machining and water jet machining are typical example of single action machining, non-traditional machining process. The machining medium is solid grain suspended in an abrasive slurry in the former, while a fluid is employed in the water jet machining process, which I told you earlier. जैसे मैंने आपको स्टीम जनरेशन पावर का सब्जेक्ट पढ़ाया था, उसमें क्या होता है, जब हम स्टीम को हाई वेलोसिटी के ऊपर टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर से फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें अगर कुछ हमारे मेटालिक वो होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो जब वो हाई वेलोसिटी के ऊपर जब टरबाइन ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करते थे, वो क्या करते थे, उसके सरफेस से मटेरियल को इरोड कर लिया करते थे. सो द सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म टेक प्लेस हेयर दिस सॉलिड ग्रेन्स they may be used with water, with some fluid or with some air. So high velocity के ऊपर जब ये fluid jet जब वो किसी सरफेस के ऊपर, वर्कपीस के ऊपर से जब स्ट्राइक करता है, तो उसके सरफेस के ऊपर से मटेरियल को हम लोग रिमूव कर सकते हैं. There may be a case like you have a workpiece, but you want to just remove the material only 1/3, 1/4 portion. So in that case, what we will do, we will cover the rest of the part with some other material, so that the solid grain will remove the material only from the surface which we desired. The introduction of abrasive to the fluid jet entrance, the machining efficiency, and is also known as abrasive water jet machining. Similar case happen when ice particles are introduced as in ice jet machining. So another example is the ice jet machining. You can see here, in mechanical non-traditional process, basically the two major one are the USM and WJM water jet machining. Here this is a machining action, और machining action किससे होगा, जो हमारी फ्लूइड जेट सलरी है, ये क्या करेगा, इसके जो सलरी है ये वर्कपीस के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा और वहाँ से हम मटेरियल को रिमूव कर देंगे. सिमिलरली इन वाटर जेट मशीनिंग में क्या है, यहाँ पर कटिंग एक्शन जो होगा वो बिकॉज ऑफ दैट वाटर जेट, और उस वाटर जेट की हेल्प से जो फ्लूइड है वो वर्कपीस के सरफेस पे आएगा और वहाँ से मेटल को रिमूव कर देंगे. सो दिस इज मैकेनिकल मशीनिंग. इन थर्मल मशीनिंग basically three major kind of machining are EDM, electric discharge machining, EBM, electronic beam machining, and LBM, laser beam machining. So thermal machining remove material by melting or vaporizing the workpiece material. तो थर्मल मशीनिंग में क्या होता है कि जो हम जिस मेटल को वर्कपीस के सरफेस से हमें मेटल को रिमूव करना है, हम क्या करते हैं,
उसके ऊपर हाई थर्मल एनर्जी के साथ, हाई थर्मल एनर्जी उसके ऊपर जो है एक्सपोज करते हैं, और जैसे ही थर्मल एनर्जी उस वर्कपीस से कांटेक्ट में आएगी तो जो सरफेस का मटेरियल है वो क्या होगा, मेल्ट होगा या वेपराइज हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको वहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सो इस तरीके से उसके सरफेस के ऊपर से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। मैनी सेकेंडरी फिनोमेना अकर ड्यूरिंग मशीनिंग सच एज माइक्रो क्रैकिंग, फॉर्मेशन ऑफ हीट अफेक्टेड जोन एंड स्टाइलेशन एक्सेट्रा। ये कुछ इस लिमिटेशंस हैं, बिकॉज ऑफ दिस ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है, माइक्रो क्रैकिंग, फॉर्मेशन ऑफ हीट अफेक्टेड जॉन और स्टाइरेशन, ये फॉर्म होते हैं। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम कुछ क्रायोजेनिक्स ट्रीटमेंट, यानी कि क्या करते हैं, उसके ऊपर हम कोई ना कोई कूलिंग इफेक्ट देते हैं, सो दैट हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। द सोर्स ऑफ हीट कुड बी प्लाज्मा एज ड्यूरिंग ईडीएम एंड पीबीएम, और फोटॉन्स एज ड्यूरिंग लेज़र बीम मशीनिंग, और इलेक्ट्रॉन्स इन electronic beam machining, or ions in IBM. So these are the sources which we used in the thermal machining. So basically 5 types of thermal machining process are EDM, electric discharge machining, EBM, electronic beam machine, laser beam machining, then PBA, plasma beam machining, or IBM, ion beam machine. So these are the process, and you can see one thing. In case of EDM, the cutting action will take place because of discharge. आपको मालूम है वेल्डिंग में हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं। करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हाँ जी, वेल्डिंग में करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हाँ जी, यस। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है, जो दोनों प्लेट्स होती हैं वो कैपेसिटर की तरह काम करती हैं, और जब उनके बीच में जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या करता है कि जो चार्ज है वो ब्रीच करता है, और एयर जो है उसमें क्या काम करता है, एयर काम करता है डाइलेक्ट्रिक का। तो जब दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब एक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, हम करंट प्रोड्यूस होगा, या यू कैन से स्पार्क प्रोड्यूस होगा, सॉरी। और वो स्पार्क यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वर्क पीस को मेल्ट करने के लिए। तो सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में, जहाँ पर क्या होता है कि हम दो प्लेट्स लेते हैं जिसके बीच में गैप मेंटेन करते हैं, और जब हम वो गैप मेंटेन करते हैं तो उसके टाइम में क्या है, वहाँ पे प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है, और वो प्लाज्मा क्या करता है, वर्क पीस के सरफेस को मेल्ट करता है। सिमिलरली प्लाज्मा बीम मशीनिंग में भी क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ तरीके से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं, पर दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पर तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं ईबीएम के अंदर। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है, जो यस एनीबडी नो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लोग गैस यूज़ करते हैं प्लाज्मा बीम मशीनिंग में। और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जाके वर्क पीस के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है। अच्छा, जैसे ईडीएम में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं, ईबीएम में गैस यूज़ करते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ ईबीएम मशीन, दोनों प्लेट्स के बीच में, यानी टूल के बीच में और वर्क पीस के बीच में हम वैक्यूम मेंटेन करते हैं, और टूल से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होते हैं, और वो वर्क पीस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और हाई हीट प्रोड्यूस करते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स लेज़र बीम मशीनिंग। सो लेज़र बीम मशीनिंग में भी सिमिलरली उसमें क्या करते हैं, फोटोन रिलीज करते हैं, और वो फोटोन पार्टिकल जाके वर्क पीस के सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एयर यूज़ करते हैं एज ए मीडियम बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस। हाँ जी, आज कुछ कह रहे थे? हाँ। वैक्यूम का इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। चलो, लेज़र बीम मशीनिंग में हम लोग एयर यूज़ करते हैं, और सिमिलरली आयन बीम मशीनिंग में अगेन वैक्यूम यूज़ करते हैं, और आईबीएम मशीन में क्या करते हैं, आयन यूज़ करते हैं, और आयन रिलीज़ होते हैं टूल मटेरियल से, जो वर्क पीस के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द थर्मल मशीनिंग। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है
डिफरेंस क्या कि हीट हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मैकेनिज्म में प्लाज्मा, और पीबीएम में प्लाज्मा बीम मशीनिंग में भी प्लाज्मा, उसके बाद ईबीएम में इलेक्ट्रॉनिक बीम, लेज़र बीम मशीनिंग में फोटोन पार्टिकल्स, और आयन बीम के अंदर आयन बीम, आयन यूज़ करते हैं। सो दीज आर द वे जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, और हीट करके वर्क पीस को हम लोग मेल्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज yes, this is chemical and electrochemical machining. So chemical and electrochemical machining बेसिकली जो मेजरली दो टाइप के हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एंड वन मोर इज CHM, केमिकल मिलिंग मशीन प्रोसेस हो गया, या PCM हो गया। प्लीज आशीष म्यूट योर माइक। So chemical milling and photochemical machining or photochemical blanking all use a chemical dissolution action to remove the machining allowance through ions in an etchant. बेसिकली क्या होता है कि इसमें केमिकल मिलिंग में या फोटोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, हम एक केमिकल यूज़ करते हैं, और वो केमिकल क्या करता है, जो हमारा मेटालिक सरफेस है उस मेटालिक सरफेस के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसके सरफेस से हम मेटल को रिमूव कर देते हैं। तो नॉर्मली जो हम इसके अंदर केमिकल यूज़ करते हैं, आइदर इट इज़ नोन एज योर एजेंट, या इसको इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में यू कैन सी ओवर हेयर आयन, यहाँ से हम आयन प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज के थ्रू, और इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वर्क पीस के सरफेस से हम क्या करते हैं, वहाँ से हम यहाँ पर रिएक्शन होकर वहाँ से मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली देयर इज अ आयन एक्सचेंज बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस। इन द CHM और PCM या यू कैन से फोटोकेमिकल ब्लैंकिंग और फोटोकेमिकल मशीनिंग, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ सेम काइंड ऑफ प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग यूज इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन टू रिमूव मशीनिंग अलाउंस यूजिंग आयन ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल, ये फोटोकेमिकल में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिमिलरली केमिकल डायोड की हेल्प से आयन प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पर हम ईचेंट यूज़ करते हैं। जो ईचेंट क्या करता है, वर्क पीस के सरफेस से आयन एक्सचेंज होगा, और आयन एक्सचेंज होने के बाद हम उसके सरफेस से मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ एग्जांपल, जैसे कि कोरोजन बनता है, कोरोजन होता है किसी आयरन बार के ऊपर, और बाद में हम उसको रिमूव कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस टेक प्लेस in chemical and electrochemical machining process. So this is the classification of non-traditional machining process, और आपके एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आएगा वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और वो यही क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ये बताना उसमें आपको ये बताना होगा कि कितने टाइप के मशीनिंग प्रोसेस है, कैसे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, और राइट हाँ जी ओके। हाँ, अब किसी की कोई